Hello students, welcome back to the e-learning classes of Sunrise Global School. This is Asmita Sharma, your social science teacher, and today we are going to continue with the second chapter of geography, that is latitudes and longitudes. So in this chapter, till now, what we have discussed, we are going to do a quick revision of whatever we have discussed. So in this chapter we have learnt about globe, what is a globe, and then you have learnt about latitudes. So latitudes are the पैरेलल लाइंस टू द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर से पैरेलल होते हुए नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में मूव करती हैं. देन यू हैव लर्नड अबाउट लॉन्गिट्यूड्स. सो लॉन्गिट्यूड्स आर द vertical lines that move from north direction to south direction like this way. vertical lines जो होती हैं वो, and latitudes are the horizontal lines like this way. Okay, so these are latitudes that move from east to west. Okay, नेक्स्ट वॉज द हीट जोन. सो जो हीट जोन हमने पढ़े थे वो हीट जोन जो है वो टोटल 3 होते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ द टॉरिड जोन. टॉरिड जोन इज़ द एरिया और द जोन विच इज़ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके, so that area receives the maximum heat by the sunlight, and that is why torrid zone is considered the most heated zone among all the 3 zones. Now apart from torrid zone there is the next one that is called temperate zone. So now temperate zone is the area that is between the tropic of cancer, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ की तरफ ऊपर जाएंगे तो आर्कटिक सर्कल तक, एंड साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल तक. दिस एरिया इज़ कंसिडर्ड एज टेम्परेट जोन. सो जो टेम्परेट जोन्स होते हैं वहाँ पर स्लांट रेज सन की मिलती हैं, एंड इसीलिए ये एरिया जो है वो ज़्यादा हीट नहीं लेती है. मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म. ठीक है, तो टेम्परेट जोन हैज़ अ मॉडरेट temperature because it receives slant sunlights of the sun. Now apart from the temperate zone there is another zone that is called the frigid zone. So आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि frigid zone ऐसा जोन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, दैट इज़ द फ्रोज़न जोन. यहाँ पर सनलाइट जो है वो बहुत कम मिलती है, बहुत लेस अमाउंट में मिलती है, एंड दैट इज़ वाई जो फ्रिजिड जोन है वहाँ पर ऑलमोस्ट इट इज़ फ्रोज़न, या वहाँ पर बहुत ठंड रहती है. अब फ्रिजिड जोन आता कहाँ पर है, तो हम लोग जब नॉर्थ में एंटार्क्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक जाएंगे वो वाला पार्ट दैट इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड जब साउथ हेमिस्फीयर में यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में जब हम लोग एंटार्क्टिक सर्कल से सदर्न पोल तक जाएंगे वो वाला पार्ट. सो ये 2 पार्ट जो हैं वो फ्रिजिड जोन में काउंट होते हैं. अंडरस्टूड. So this was all about globe, latitude, longitude and the 3 heat zones of the earth. Now in the today's class we are going to speak about longitude and time. So the main topic for today's class is longitude and time. Now why there is a need of longitude to decide the time period or the time that is about to happen in the earth. So in this topic we are going to learn about the same topic. The best means of measuring the time is by the movement of earth, the moon, the planets. So जब हम लोग अर्थ, मून और प्लैनेट्स की हेल्प से मूवमेंट को मेजर करते हैं तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ मेजरमेंट जो यूज़ होता था इन द एंशिएंट पीरियड बिकॉज देयर वर नो clocks in that period. So the people used to measure the time with the help of earth, moon and the planets, also with the help of the stars. So now the next is the sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at the sunrise and sunset. So जो sun है वो एक दूसरा मीडियम है, जो एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है जानने के लिए कि क्या टाइम हो रहा है, एंड वो जो है वो हम शेडो के थ्रू जानते हैं. जो शेडो हमारी होती है वो सबसे छोटी होती है नून के टाइम पे यानी कि दोपहर के टाइम पे, और सबसे बड़ी होती है सनराइज़ एंड सनसेट के टाइम पे. सो जब सूरज की रोशनी बहुत कम होती है तब हमारी शेडो बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है, एंड जब सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है यानी कि सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है तब हमारी शेडो जो है वो बहुत शॉर्टेस्ट बनती है.
एंड इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, करेक्ट. So when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. So this is the important thing जो आपको याद रखनी है कि जो ग्रीनविच है वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम ही है. तो ग्रीनविच पर जब हाईएस्ट पॉइंट पे सन होगा तब ऑलमोस्ट सारे मेरिडियंस में मिडडे या नून होगा. As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich, यानी कि वो ग्रीनविच के टाइम से आगे चलेंगी. एंड दोज दैट आर वेस्ट विल बी बिहाइंड इट, यानी कि वो ग्रीनविच के टाइम से पीछे चलेंगी. सो जो ईस्ट पे प्लेसेस हैं वो सब ग्रीनविच के टाइम से आगे चलेंगी एंड जो वेस्ट पर हैं वो ग्रीनविच के टाइम से पीछे चलेंगी. द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स. सो आपके पास 360 है एंड 24 है. तो जब हम लोग 360 का 24 से डिवीज़न करेंगे, यानी कि जब हम 360 को 24 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो है 15. सो 15 इज़ योर आंसर, यानी कि विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर, यानी एक आवर में आप 15 डिग्री मूवमेंट कर रहे हैं और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स. जब हम लोग मिनट के हिसाब से इसको काउंट करेंगे तो आप 1 मिनट में 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट्स में जा रहे हैं. सो 360 को 24 से डिवीज़न करेंगे तो यू विल गेट 15 डिग्री. 15 डिग्री आप 1 आवर में मूवमेंट करते हैं. एंड जब हम लोग पर मिनट की बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. एंड जब हम लोग 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो द आंसर विल बी 4, यानी कि आप 4 मिनट्स में, दैट मीन्स इन द टाइम पीरियड ऑफ 4 minutes you are moving 1 degree. So when it is 12 noon at Greenwich, तो अगर ग्रीनविच में सपोज करिए 12 बज रहे हैं दोपहर के, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट, तो अगर हम लोग ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम पीरियड आगे जाएगा, यानी कि बढ़ रहा होगा. ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ टाइम ज़्यादा होगा. सो वो 15 इंटू 4 करेंगे यानी कि 60 मिनट्स. तो 1 आवर टाइम, यानी अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो उसकी ईस्ट की तरफ जाएंगे हम लोग तो 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर 1 बज रहा होगा. एंड उससे 15 डिग्री जाएंगे तो वहाँ 2 बज रहा होगा. एंड यूँ टाइम पीरियड जो है वो 1 आवर इंक्रीज़ होता जाता है ईस्ट की तरफ. सिमिलरली अगर वेस्ट की बात करें तो जब ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे तो उसकी वेस्ट की तरफ आप जाएंगे, जितना भी प्लेसेस उसकी वेस्ट में आते हैं उन सब पे 1 आवर टाइम कम होता जाएगा. यानी कि वेस्ट जो एकदम एग्जैक्ट वेस्ट है वहाँ पे 11 बज रहे होंगे, उसके बाद 10 बज रहा होगा, उसके बाद 9 बज रहे होंगे. एंड सिमिलरली सारा टाइम जो है वो यूँ डिसाइड होता है. एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 14 or 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. So when it is a midday, time shown by such a watch will give the local time of that place. So you can see that all the places on a given meridian or longitude have the same local time. So जो local time होता है वो हमेशा same होता है because उसकी reading 12 o'clock पे set होती है. So this is how longitude and time जो है वो हम लोग longitude के basis पे हम लोग time decide करते हैं. I hope this much is clear to you. So the last topic of the chapter will be discussed in the next video. Till then, take care, stay safe, stay home.